ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଅବସରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ କଲଚରାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଫୋରମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ର କରିଛୁ। ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଡକ୍ଟର କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆଶିଷ ସାଇନ୍। My namaskar to all the eminent Swami Vivekananda. Every year, this organization, Swami, giving introduction of the young speaker who will speak on today's webinar. I want to say that I extend my hearty best wishes to all the participants of this webinar. Happy Youth Day and best wishes for the 160th birth anniversary of Swami Vivekananda, the young monk. As you know, he was a monk. He was not a monk. Swami Vivekananda was not a rational realizations or God realizations. And because you all know that there are three important eminent personalities of India. They really understood what India was. First was Shankaracharya in the 8th century of Indian history. Then came Swami Vivekananda. He traveled throughout the territory of India. So, no doubt Swami Vivekananda is called a monk. But his philosophy is not for self-realization, but for eradication of ignorance, poverty, and sufferings of the Indian people. And as you know, his watershed speech on the World Parliament of Religions in the year 1893, September 11, when he delivered his speech in that Parliament of Religions, the whole world turned their eye towards India. Till that time, India was known as a country of snake charmers, a country of blind believers, a country those who believe in different blind beliefs like sati, by child marriage, and a country of ignorance, illiterate people. First time, the people of the world they come to know actually what India is. And more specifically, the viewers, I can say, his thrust was on the youths. And this year, fortunately in India, we are celebrating the 75th 5 years of India's independence that is called the Amrit Mahotsav. And on this occasion, I want to speak to the youth that let us work for next 25 years. By 2047, I think if our youth will be regenerated and they will do their duty, definitely India will be the leader of the whole world. Anyway, I don't want to speak. We want to listen the young scientist, Dr. Ashish Panda. I want to introduce him. Dr. Ashish Panda, he is a son of soil of Western Odisha and specifically he belongs to Sambalpur town and we are proud of him. He is now working as a junior scientist in R&D at Pune. He has completed his post-graduation, he has completed his PhD from Indian Institute of Sciences, Bangalore. And here also I want to tell you, you must have known it also. In 1909, the establishment of Indian Institute of Science at Bangalore was a vision of Swami Vivekananda. Because it was Swami Vivekananda who suggested this idea into the mind of the then industrial giant J.R.D. Tata. So we are proud that Ashish Panda
is awarded PhD from that pride institution of India, Indian Institute of Sciences. Besides that, when he was a student, he was awarded gold medal from Sambalpur University. Besides that, he has published a lot of articles related to scientific discoveries and science in international and national journals. And also, what I know, Dr. Panda has also given many talks in different platforms. He was a very good, excellent orator. And during his academic career, he is a young boy, young man. He engaged in many events of nationalist organizations. And today's topic on which Dr. Panda will speak to us is very relevant, and he himself has selected the topic, and he wants to direct or tell or give his deliberation on Swami Vivekananda for youth of 21st century. Definitely, it is his idea. And finally, I don't want to speak more. We want to listen this young scientist of India, Dr. Ashish Panda. Now, I would like to request Dr. Ashish Panda, please start your delivery of speech on Swami Vivekananda for youth of 21st century. Thank you, Dr. Basan sir. Thank you very much. If all of you you guys can hear me clearly and I am clearly visible, please write Bande Mataram in the chat. Okay, the Bande Mataram Saturday. So let me chant one Vedic mantra before we proceed. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahe. Om Shanti Shanti Shanti. I know here in audience a lot of my teachers are there and all of the intellectual persons are there. I gratitudely thank them to join me, and I touch their feet, and your blessings always mean a lot. And also I am very happy to see the enthusiastic crowd, young crowd will join us. We are live in YouTube also. Very thank you for joining me. It's my honor to speak at this forum before such an intellectual audience, and it is filled with joy. My heart is filled with joy. So let me speak in Hindi, because there was one incident when I joined Ramakrishna Mission Mutt in Pune in Kalpataru Divas this year. I could not understand anything because they were speaking in Marathi. Unfortunately, in India we have language problem, but I am learning Marathi also. So let me speak in Hindi so that I can connect with all of you, and let's discuss. Let's see how it goes. So आज का टॉपिक है हमारा स्वामी विवेकानंद फॉर यूथ इन 21st सेंचुरी. सो स्वामी विवेकानंद का रिलेवेंस क्या है आज का युवा के लिए? क्यों हमने ये टॉपिक चुना? पहली बात तो ये, क्यों हमने ये टॉपिक चुना? Because more than 65 of our population is below 35 years. In India, we have more than 65% of our population which is below 35 years. So, युवा only can drive this country to become विश्वगुरु. क्यों हम नेशनल यूथ डे पालन करते हैं? आज नेशनल यूथ डे है. सरकार ने बहुत पहले ही अनाउंस किया था ये नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन करने का. सो हम क्यों ये पालन करते हैं? बिकॉज सरकार हमको एक मौका दे रही है कि विवेकानंद जी को
हम स्मरण करें और हम सब युवा उनसे अनुप्राणित होके, उनसे प्रेरणा लेके देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगवर हुए। सो हम सबका सौभाग्य है कि हम आज स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का अवसर प्राप्त किए हैं। डॉक्टर बसंत सर तो बोले कि मेरा अल्मा मेटर जो IISc बेंगलोर है उसका कनेक्शन स्वामी जी के साथ कैसा है। सो मैं वो ब्रीफली जाऊंगा और मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हूँ आप सबके लिए, ताकि हम सबको सुविधा हुए कि आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख के आप उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड इन यूट्यूब सो दैट everybody can watch it later also. So as Dr. Basant sir told कि स्वामी जी एंड उनका क्या रिलेशन है IISc के साथ। सो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ये उनका लेटर है, सर जमशेदजी टाटा जी का लेटर है स्वामी विवेकानंद जी को, जिनसे कि वो प्रेरणा लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसको बनाने के लिए फंडिंग दिए थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ना विवेकानंद जी ना जमशेदजी टाटा देख पाए अपने चक्षु से, बिकॉज उनका मृत्युवरण हो चुका था जब ये एस्टेब्लिश हुआ। तो हम ये जमशेदजी टाटा के तरफ से एक भेटी था रिसर्च साइंटिस्ट को इन इंडिया। सो 160 वर्ष पूर्व स्वामी जी का जन्म हुआ था। सो बिफोर आई प्रोसीड इनटू दैट, मैं क्या क्या आज कवर करूंगा एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूं ताकि आप सब बने रहें हमारे साथ। टाइमलाइन ऑफ स्वामी जी लाइफ की, स्वामी जी का लाइफ कैसे चला हम जानते हैं, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव से हम जानते हैं, पर ईच ईयर करके क्या क्या हुआ उनके लाइफ में, कैसे कैसे मोड़ आए और वो अपने आप को कैसे बदलते गए विद दैट सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ, हम उसको देखेंगे। देन वो बदलता सिचुएशन में वो अनुप्राणित होके कैसे हम लोगों को प्रेरणा देते हैं टू अपलिफ्ट सनातन धर्म एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली सनातन धर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो विवेकानंद इज a overall huge personality who connects spirituality to the modern science and technology. And उनका important message क्या क्या है विवेकानंद जी का, एंड उनका इंस्पिरेशन एंड टीचिंग, हम आज अगर कुछ इससे सीख सके तो मैं समझूंगा मेरा ये टॉक आज सफल हुआ। 160 साल पूर्व समाज व्यवस्था कैसी रही होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। घोर निराशा, घोर अंधकार छाई हुई थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश के अंडर था और चारों तरफ अस्पृश्यता, जातिवाद, ये सब चल रहा था। ऐसे घोर अंधकार के बीच, घोर निराशा के बीच नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ कलकत्ता में, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। सो ऐसे समय पर आप सोचिए, ऐसे निराशापूर्ण समय पर जन्म हुआ और वो सिर्फ 39 साल 40 साल के जीवन में वो कितना काम कर गए कि हम आज भी उनको स्मरण करते हैं। वो बोलते थे उनके अंतिम समय में भी बोलते थे कि आंखों से मैं देख रहा हूं भारत माता को फिर से जगत गुरु बनने के लिए। मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बनेगी। सो उस निराशा की स्थिति में भी वो देख पा रहे थे कितना उनके अंदर जज्बा था, हम सब उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। फिर उनके जन्म हुआ, फिर वो पढ़ाई किए, वो अच्छे थे पढ़ाई में, बीए वो ग्रेजुएट हुए, उसके बाद नौकरी के तलाश में गए। उसी वक्त थी 84 में उनका फादर का देहांत हो गया।
उसी वक्त उनको बहुत परेशानी हुई। वो जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब किए भी कुछ कुछ, पर बहुत परेशानी हुई। हंगर में और पुअर स्टेट में उनका लाइफ बीता। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में उनका बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से। जब पापा गुजर गए तब उनका इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। हालांकि बीच में वो स्पिरिचुअलिज्म से भटक भी गए थे। वो सबको पूछ रहे थे कि क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? आप तो इतना स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, क्या ईश्वर दिखा सकते हैं मुझे? तो कौन बोलेगा ईश्वर किसको दिखेगा? लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तब रामकृष्ण जी ने उनको बोला, मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। पर विवेकानंद जी तो साधारण पुरुष नहीं थे। वो वापस से पूछे उनको, आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर को देखते हैं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? फिर एक टच ऑफ फीट जिसको हम बोलते हैं, एक स्पर्श मात्र से ही विवेकानंद घंटों तक समाधि की अवस्था में रहे। रामकृष्ण जी का एक स्पर्श मात्र से ही। इसी से विवेकानंद जी का स्पिरिचुअल जो यात्रा है वो स्टार्ट हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी भी कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की ताकत, भारत का आत्मा है स्पिरिचुअलिज्म, और स्पिरिचुअलिज्म की ताकत ही भारत को आगे ले जाएगा। सो इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम जी भी स्वामी जी से बहुत ही अनुप्राणित थे। इसके बाद स्वामी जी का पापा के देहांत के बाद 1-2 साल के अंदर ही उनका गुरु का भी देहांत हो गया। उसके बाद स्वामी जी निकल पड़े। वो तो ईश्वर को रियलाइज कर चुके थे, ईश्वर को वो अनुभव कर चुके थे। अब वो निकल पड़े देश सेवा में। वो बोले कि ये जितना तुम लोग पूजा पाठ में विलीन रहते हो, इससे ऊपर है देश सेवा। सो वो देश सेवा करने के लिए आगे बढ़ गए। हम देखेंगे वो देश सेवा में कैसे आगे बढ़े। ईश्वर की अनुभूति हो गया उन्हें रामकृष्ण जी के वजह से, जिसके लिए वो घर संसार सब कुछ छोड़ा थे, घर संसार सब छोड़े थे, उसी भगवान के आराधना में जिंदगी वो नहीं बिताए। वो क्या बोले? राष्ट्र ही मेरा सब कुछ है। वो बोलते रहे जिंदगी भर कि ये जो इतनी तुम लोग पूजा पाठ करते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा एक ही ईश्वर होना चाहिए, तुम्हारा पूजा एक ही ईश्वर को होना चाहिए, वो है मां भारती। मां भारती जी को आप लोग पूजा करो, मां भारती जी के लिए आप लोग काम करो। तो इसके बाद वो निकल पड़े मां भारती जी का पूजा करने के लिए, जो कि उनका काम था। विश्व में सनातन धर्म, हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को पहुंचाना उन्होंने आरंभ किया। मैं हर एक पॉइंट उनका लाइफलाइन का नहीं टच कर रहा हूं, क्योंकि बहुत विराट टॉपिक है ये, उनका सब कुछ बोलना। कृपा करके आप लोग तो म्यूट कर दीजिए अपने आप को, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। थैंक यू। एक दिन जूनागढ़ से जैतपुर जा रहे थे स्वामी जी, और स्टेशन मास्टर उनको बोले कि वाइल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रहा है, आप जा सकते हैं स्वामी जी। तो वो स्टेशन मास्टर की बात देखिए, वो सोचे कि हाँ मुझे जाना चाहिए। विवेकानंद जी तब पॉपुलर हो गए थे ऑलमोस्ट इंडिया में, उनके अनुगामी भी थे, उनके साथी भी थे, सब लोग काम कर रहे थे। पर ये हमें सिखाता है कि वो कितने डाउन टू अर्थ पर्सन थे, कि एक रेलवे की साधारण कर्मचारी से भी वो प्रेरणा लेके यूएस जाने के बारे में सोचते थे।
फिर वो अटेंड करते हैं शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। 9/11 में अगर आप सबको पूछूं कि 9/11 क्या था, तो आप सब लोग बोलेंगे कि 9/11 टेररिस्ट अटैक था जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, ट्विन टावर में 9/11। पर हम लोग नहीं याद करते कि 9/11 को शिकागो में उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व एक यंग लड़का मेरे एज का, मैं घर में बैठा हूं, वो शिकागो में जाके बोलते थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद 5 मिनट 6 मिनट तक तालियां गूंजती रही यूएस में, ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो लोग तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन में टिके हुए थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक तरफ देखिए टेररिस्ट अटैक और एक तरफ देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो कि भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये परंपरा को आगे ले जाती है। तो वो शिकागो में अपना भाषण रखे। वो भाषण में एग्जैक्टली क्या बोले थे मैं थोड़ा आपको पूरा नहीं पढ़ूंगा, एक छोटा सा चीज मैं पढ़ के आप लोग को बताना चाहता हूं। वो मेंशन किए थे इसमें, मैं बहुत खुश हूं कि मैं हिंदू सनातन धर्म परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस सभा में। तो वो मेंशन किए थे हिंदू सनातन परंपरा, जो कि आजकल हम लोग यंग जनरेशन नाम लेने से थोड़ा कुंठा बोध करते हैं। हम जब से फ्रेंड सर्किल में होते हैं, यंग जनरेशन इधर मौजूद है, ये सब को रिलेट कर पा रहे होंगे, हिंदू सनातन धर्म बोलने से कुंठा बोध करते हैं। लेकिन स्वामी जी तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, फिर भी वो शिकागो में जाके बोल रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सनातन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं। और वो सब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये सब लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है उनके बारे में कि क्या क्या वो बोले। और बहुत चारों तरफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में उनका बहुत वाहवाही हुआ। फिर विवेकानंद लंदन, यूरोप इस तरफ भी गए, भारतीय परंपरा को प्रचार किए, विभिन्न साइंटिस्ट से भी वो बात किए। फिर वो एस्टेब्लिश वेदांत सोसाइटी इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में अभी भी है, वो वर्किंग है। और वेदांत फिलोसफी फॉर साइंस मैं जिसे कहता था, पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाई और उनके प्रेरणा से बनाई जे.आर.डी. टाटा ने। फिर यूरोप में वो जाते थे, जब वो वेदांत फिलोसफी को आगे बढ़ाते थे। और निकोला टेस्ला, मेरे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो उनको पता होगा, निकोला टेस्ला जिसके नाम से अभी टेस्ला कार भी निकला है, उनके नाम से वो है। निकोला टेस्ला को वो वेदांत फिलोसफी के बारे में चर्चा करते थे उनके साथ, और निकोला टेस्ला उनसे अनुप्राणित होकर बहुत सारे चीजें वो लिखे हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि मैं स्वामी जी के साथ डिस्कशन करके मेरे को बहुत आइडिया मिला, जिससे कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो डेवलप की। तो विवेकानंद जी द्वैत और अद्वैत ये दोनों को एक साथ जोड़ते थे। अद्वैत परंपरा को वो पहले आगे बढ़ाए, फिर वो अद्वैत परंपरा को ही क्वेश्चन भी करते थे। तुम लोग तो आत्मवत् सर्वभूतेषु बोलते हो अद्वैत परंपरा में, पर क्या देश सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हो? ये ढोंग नहीं चलेगा, वो बोलते थे। फिर वो आइडल वर्शिप के ऊपर भी कमेंट्री दिए हैं कि सनातन धर्म में आइडल वर्शिप जो है वो हम मूर्ति पूजा, मूर्ति को नहीं करते, मूर्ति के पीछे जो आइडियल है, आइडल से जो आइडियल है वो आइडियल को हम पूजा करते हैं। इसीलिए हम आंख बंद कर लेते हैं जब भगवान के सामने जाते हैं। तो वो एक कड़ी थे अद्वैत और द्वैत के बीच में, स्वामी विवेकानंद। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद का विजन ऑफ वन इंडिया, ये शिकागो जाने से पहले उनका दिमाग में आ चुका था
जब वो कन्याकुमारी में तटस्थ थे, कन्याकुमारी में बहुत तपस्या किया। विजन ऑफ वन इंडिया, अखंड भारत की आज बात होती है, उसका नींव स्वामी विवेकानंद ने तब रखी थी जब भारत आजाद भी नहीं हुआ। उसके बाद देश की बहुत सारे काम करने के बाद स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअलिज्म में फिर फोकस करने लगे। फिर वो रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किए एंड 1897 में फिर विवेकानंद जी का उसके बाद उनका देहांत हो गया 1902 में। तो बहुत ही यंग एज में वो हमको छोड़ के चले। मैं तो बोलता हूं स्वामी विवेकानंद शंकराचार्य का और एक अवतार थे। शंकराचार्य भी बहुत कम 30 साल की उम्र में वो बहुत सारे काम करके हमको छोड़ के चले गए थे, और स्वामी विवेकानंद भी बहुत छोटे से उम्र में वो हमको छोड़ के चले गए। और अगर स्वामी जी और ज्यादा दिन तक भारत में रहते तो भारत का स्थिति और दिशा आज अलग होता। खैर, ईश्वर की अलग ही मर्जी होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि स्वयं शंभुनाथ के अवतार थे स्वामी विवेकानंद। Consistent introspecting, improvement in his personality always was the main agenda of स्वामी विवेकानंद। वो एक जगह पर टिके नहीं रहते थे, वो हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके इम्प्रूवमेंट लाते थे। वो बोलते थे 100 तेजस्वी ऊर्जावान युवा दो मुझे, मैं भारत बदल दूंगा। पर अब तो स्वामी जी नहीं है, तो हम 100 से काम चलेगा क्या? हम सभी लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा मां भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए। विश्व गुरु किस में? खाली स्पिरिचुअलिज्म में नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयबिलिटी में, वेल्थ क्रिएशन में, सभी में आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली स्पिरिचुअलिज्म से काम नहीं बनने वाला। स्पिरिचुअलिज्म हमारा मदद करेगा टू टेक द इंडिया अहेड ऑफ एवरीबॉडी। स्पिरिचुअलिज्म हमारा ताकत है, पर हम खाली साधु सन्यासी बन के नहीं रह सकते। ये स्वामी जी का कहना था। मंदिर में बैठने से भगवान नहीं मिलेंगे, जन सेवा ही प्रभु सेवा, ये स्वामी जी का आह्वान था। क्या क्या मैसेज था स्वामी जी का? फिजिकल, वो युवा वर्ग को कहते थे फिजिकल एक्टिविटी करो, घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आज के संदर्भ में आप लोग जिम जाइए, कसरत कीजिए, फिजिकल पावर को बढ़ाइए, तो मेंटल स्टेबिलिटी आएगा। वो बोलते थे यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू स्टडी ऑफ द गीता। इसका अलग मतलब मत निकालिए, इसका एक ही मतलब है कि आप गीता समझ भी नहीं रहे, खाली गीता को पढ़े जा रहे हैं, संध्या आरती किए और गीता को पढ़े जा रहे हैं बिना समझे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप सोच रहे हैं किसी इंडिया का क्रिकेट मैच क्या चल रहा है और गीता पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। सो फिजिकल ताकत बढ़ाइए ताकि आपका फोकस आए, कंसंट्रेशन आए, स्ट्रेस रिलीज हो। फिर उससे क्या? उससे सोशल सर्विस कीजिए। फिजिकल ताकत बढ़ाइए, उससे यूनिटी लाइए अपने में, फिर सोशल सर्विस कीजिए। शार्प गॉड इन मैन। फिर वो बोलते थे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑल्सो शुड बी देयर इन ह्यूमन बीइंग। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसे आएगा? कंसंट्रेशन, जो कि फिजिकल से आया। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसे आएगा? कैरेक्टर मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग। बेसिकली वो बोलते थे स्किल डेवलपमेंट करो,
ऐसा नहीं कि हम डिग्री ले लिए, डिग्री तो ले लेते हैं आजकल सब। स्किल क्या है, क्या जानते हैं हम, वो स्किल क्या है, क्या हम कर सकते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट के पीछे स्वामी जी का बहुत बड़ा मैसेज है। और ओवरऑल एवरीथिंग स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्यों चाहिए हमें? सन्यासी बनने के लिए बन सकते हैं जी, जो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, वो लोग बन सकते हैं सन्यासी। पर जो आधुनिक काम काज जो है, स्किल डेवलपमेंट जो है, उनको ना करके उनसे बचते हुए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं, वो स्वामी जी ने विरोध किया है। टेक अप ए ग्रेट आइडियल एंड गिव अप आवर होल लाइफ टू इट। टेक अप ए ग्रेट आइडियल, स्वामी जी आज इच आवर आइडियल एंड गिव आवर होल लाइफ टू इट। उनका जो मैसेज है उसको प्रस्फुटित करने के लिए होल लाइफ न्योछावर कर दीजिए। ये मैंने एक इंटरनेट से रामकृष्ण मिशन मंदिर का ट्रस्ट का वेबसाइट से लिया हुआ है। ये रामकृष्ण मिशन जो स्वामी जी ने स्थापना की थी, उसका जो सिंबल है, उसका जो उगता हुआ सूरज है, वो क्या दर्शाता है? वो ज्ञान को दर्शाता है। जो कमल है वो भक्ति को दर्शाता है। जो सागर है जिसके ऊपर हंस खेल रही है, वो कर्म योग को दर्शाता है। तो ये सब एक तरह से ईश्वर को प्राप्ति करने में सहायक है। सभी कुछ ज्ञान योग, ज्ञान नहीं रहेगा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। भक्ति योग एंड कर्म योग, और उससे भी बड़ा राजयोग। राजयोग क्या है? कंसंट्रेशन। इधर एक कोबरा की सिंबल है। कोबरा का कंसंट्रेशन का कोई तोड़ नहीं। बहुत कंसंट्रेट, फोकस रखिए, वो है राजयोग। ये चारों चीजें जब होगा, परमात्मा की अनुभूति होगी। बहुत फोकस रहेगा, बहुत कर्म योग रहेगा, बहुत ज्ञान योग रहेगा, बहुत भक्ति योग रहेगा, तो आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। आप मंदिर में बैठ के दिन भर पूजा करके फोकस नहीं है, पूजा कर रहे हैं, कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। फिर स्वामी जी का मैसेज क्या था यंग लोगों के लिए? 3 चीजें होना चाहिए आप सब में। स्ट्रक्चर, फेथ इन आवर ट्रेडिशन, सेल्फ एस्टीम बिल्ड कीजिए। मैं एक आपको उदाहरण दे के समझा सकता हूं। फेथ इन आवर कल्चर। अब आपने मार्क किया होगा कि जब भारत में कुछ पॉलिटिकल उथल पुथल होता है, कुछ ऐसे डिसीजन सरकार लेती है जिसको कि हम लोग विरोध करते हैं, उस टाइम कुछ लोग न्यूयॉर्क में, कैम्ब्रिज में, कैलिफोर्निया में, मेरे कुछ दोस्तों भी हैं उधर उस यूनिवर्सिटीज में, मेरे क्लासमेट्स हैं, वो लोग भी पीछे नहीं हटते भारत को नीचा दिखाने, तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन भारत का जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको आगे दिखाते हैं वो लोग। पर स्वामी जी कभी ऐसा नहीं की। स्वामी जी के समय देखिए ब्रिटिश राज था, कितना घोर अंधकार था इंडिया में, फिर भी स्वामी जी शिकागो गए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली अपना ट्रेडिशन के बारे में, भारत के बारे में। वापस आए भारत और भारतीयों को बहुत सारी मैसेज दिया उन्होंने, बहुत सारा काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ये सब बहुत सारा बुक्स लिखे उन्होंने, और सबको ऐसे नहीं सॉफ्ट कर्नर रख के भारत की काम किया उन्होंने। भारत के अंदर बहुत स्ट्रांग होके वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब वो बाहर जाते थे भारत के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते थे। तो ये क्यों होता था उनमें?
क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा था, श्रद्धा फॉर आवर ट्रेडिशन, श्रद्धा फॉर आवर कल्चर, श्रद्धा फॉर आवर धर्म। पर अभी का यंग जनरेशन में मैं अपने आप को भी भारत की निंदा करेंगे तो हम कूल बनेंगे। We pretend to be cool by criticizing India. मैं बीच बीच में रुक रहा हूं क्योंकि लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एडमिट कर रहा हूं उनको, इसलिए। तो श्रद्धा होनी चाहिए हमें, बहुत ही क्लियर थे उनका मैसेज था, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखने से ऑलमाइटी गॉड भी आपको मिल सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला दिया है स्वामी जी ने। लिविंग कॉन्शियसली, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ असर्टिवनेस, गोल ऑफ लाइफ एंड ऑनेस्टी टू योरसेल्फ। लिविंग कॉन्शियसली, हम क्या कॉन्शियसली लिव करते हैं? मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। अभी भी YouTube वीडियो ऑन करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करते करते 6 घंटा पार हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। वो अनकॉन्शियस लिविंग, हम कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं, जो स्वामी जी का पहला मैसेज है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, हमें एक्सेप्ट करना तो दूसरों को भी एक्सेप्ट करेंगे, विनम्रता लाओ। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सभी का, ऐसा नहीं दूसरे आदमी करेगा हम बैठ के मक्खन खाएंगे, ये नहीं चलेगा। गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए आपके पास। एंड ऑनेस्टी टू योरसेल्फ, ऑनेस्टी इन लाइफ देयर शुड बी। ऑनेस्टी टू योरसेल्फ, ये गीता में आप अगर जाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑनेस्टी का परिभाषा क्या है। मैं आज नहीं जा रहा हूं उतना अंदर, हमारे अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, ना कि बाहर को दिखाने के लिए ऑनेस्टी होना चाहिए। और स्वामी जी बोलते थे पेट्रियाटिज्म फर्स्ट देन यूनिवर्सलिज्म। आप अगर अपने माता जी का सेवा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों का सेवा कर रहे हैं, उसमें क्या है? उसी बात को स्वामी जी ने बोले कि भारत माँ की सेवा नहीं कर रहे हो, बाहर जाके दूसरे देशों की सेवा में अपने नाम बढ़ा रहे हो, उसमें क्या आपको मिल रहा है? He who fails to love and support his mother, how can he provide substance for another mother? ये स्वामी जी का आह्वान था। आजकल जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, हम सीख के, काम सीख के वापस आना चाहिए इंडिया में, और फिर इंडिया में काम करना चाहिए। जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बाहर जाते हैं, काम सीखने के लिए जाते हैं, फिर वापस आके भारत की सेवा करते हैं, पर हर कोई ऐसा नहीं करता। उससे स्वामी जी को प्रेरणा लेना चाहिए और फिर भारत माँ की सेवा के लिए वापस आना चाहिए उसको। स्वामी जी जैसे बाहर गए, भारतीय परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने भारत वापस आके बाहर से जो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस लिया था, सभी साइंटिस्टों से चर्चा करते थे, भारत में वो चीज को वो आगे बढ़ाए, वो आइडियाज दिए, JRD टाटा को वो आइडिया दिए, और बहुत सारे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काम किए, भारत का अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इन द लास्ट आई विल से वन माय फेवरेट कोट of Swami Vivekananda. Once more the world must be conquered by India. This is the dream of my life. I wish that each one of you who hear me today will have the same dream in your minds and stop till you have realized the dream. तो मैं आज की युवा वर्ग को आह्वान करता हूं कि लेट्स make India Vishwaguru by education, skills, wealth creation and overall spiritualism. स्वामी जी बोलते थे
Education is not amount of information that we put onto a brain. If you have assimilated 5 ideas, खाली एजुकेशन लेने से नहीं होगा। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा है, उसमें भी इसको कंसीडर किया गया है कि खाली एजुकेशन डिग्री लेने से नहीं होगा। वी हैव टू एसिमिलेट, उसको पचाना पड़ेगा। वी हैव टू एसिमिलेट only 5 ideas and made them your life and character. You have more education than any man who has got by heart a whole library. मतलब जो लाइब्रेरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 5 आइडिया को आप एग्जीक्यूट कीजिए। आइडिया तो बहुत मूल्य के भाव बिकते हैं इंडिया में। अभी आप किसी से बात कीजिए, आइडिया निकल के ही आ जाएगा उसके मुंह से। एग्जीक्यूट करना है हमें। तो मैं युवा शक्ति को आह्वान करता हूं कि हम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वी शुड बिकम जॉब गिवर नॉट जॉब सीकर। वी शुड डिफरेंशिएट स्किल एंड नॉलेज। हम ये सबको आगे लेके हम भारत को एक विश्वगुरु बनाने के लिए आगवर होइए। और हम लोग यूनिटी रखिए, अपने आप में यूनिटी रखिए और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़िए। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ऐसे स्पिरिचुअल टॉक्स, स्पिरिचुअल गैदरिंग करते रहिए अपने यूनिट में। स्पिरिचुअल गैदरिंग से हमको प्रेरणा मिलती है भारत को आगे ले जाने की, जिसका कि आइडल है स्वामी विवेकानंद। आज उनका जन्म तारीख है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार और मैं उनको नमन करता हूं। मैं आप सभी ऑडियंस का भी नमन करता हूं जो मुझे सुने। आज कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ कीजिए। मैं भी स्वामी जी को पढ़ रहा हूं, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। और आप सब गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी मेरे यंग साथी जो हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं कि कीप द यूनिटी एंड कीप अप योर लाइफ, कीप ए गोल। वी शुड मूव फॉरवर्ड विथ ए सिंगल गोल, मेक इंडिया अनदर अगेन विश्वगुरु। इतना ही बोल के मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं और मैं फिर से स्वामी विवेकानंद केंद्र को धन्यवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद समिति, स्पोर्ट्स एंड यूथ क्लब, जितने भी स्वामी विवेकानंद जी को आइडियल मानते हुए क्लब्स, यूनिट्स बनाए गए हैं, सभी को मेरा प्रणाम।